Yes, sir. Ansika, yes. Yes, sir. Sir, am I audible? Oh, yes, audible. Okay, sir. Good afternoon, everyone. I, Anshika, welcomes you all to this webinar on healing through breath and meditation. I would like to thank you to each and every one of you for being here with us today, and we are very pleased to be able to welcome you all. So, before proceeding further, as we all have a traditional auspicious lamp lighting ceremony as a tribute to Mother, the goddess of knowledge, I would like to request for lighting of the lamp along with Saraswati Vanna. या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डवन्दितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदा जाड्यान्धकारापहा। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। Anuradha ma'am, now start. Yeah. Yeah. So thank you so much. Good afternoon, everyone. So I, Dr. Anuradha Saha, on the behalf of Green Environment Club, Department of Applied Sciences, Galgotia College of Engineering and Technology, felt privileged to welcome our speakers from Art of Living, Ms. Ritu Shetty and Ms. Anu Verma, Ms. Sunita and Ms. Nidhi Goyal, who will tell us about the healing techniques through breath and meditation. And I offer my deepest gratitude also to Honorable Chairman Sir Shri Sudhir Galgotia ji, CEO Sir Shri Dhruv Galgotia ji, Honorable Director Sir Professor Brajesh Singh Sir, and Head of Applied Sciences Professor Rajesh Tripathi Sir for giving us the opportunity to organize such a webinar in our department. So, Ms. Ritu Sethi and Ms. Anu Verma are Art of Living teachers since 15 years. They have dedicated their life for selfless services to bring change in people's life. The Art of Living cites research that Sudarshan Kriya techniques boost the function of the brain as well as immune and cardiovascular systems. As a result, the Kriya reduces depression, stress, anxiety, and similar emotional disorder. So I will request now our Art of Living speakers to really take on the session and enlighten us. Thank you. Thank you. Thank you. Ma'am, Kandi. Thank you so much, Anuradha ji. Thank you, ma'am. और कैसे हैं आप लोग सब? बिल्कुल ठीक। बढ़िया। जी। ओके, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, चलो शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ आज हमारा टॉपिक है मेडिटेशन का, तो आप लोग बताएंगे
व्हाट इज मेडिटेशन? क्या है आपके हिसाब से मेडिटेशन? बताएं। अच्छा, बहुत लोगों के कैमरास ऑफ हैं, तो अगर आप ऑन कर ले तो अच्छा रहेगा। क्या है, बताएं। कोई बताएगा मेडिटेशन के बारे में? क्या सोचते हैं आप मेडिटेशन के बारे में? Ma'am, meditation I think is about ध्यान. हाँ, ध्यान. वो तो ध्यान तो हिंदी में उसका नाम हो गया मेडिटेशन। हाँ. तो मतलब मेडिटेशन आपके हिसाब से है क्या? मतलब क्या होती है मेडिटेशन? कोई मतलब कोई गैस कर सकता के है? द्वारा विलक्षण बुद्धि हाँ? प्राप्त करना, ध्यान के द्वारा विलक्षण बुद्धि प्राप्त करना। प्राप्त वेरी करना। गुड, ग्रेट ग्रेट। और Ma'am, meditation means, I think, to concentrate, to pay attention to your own self. अपने अंदर ओके, ध्यान लगाना, कंसंट्रेट। देखना. ओके, Yeah. गुड। Ma'am, और बताएं। meditation is a type of exercise to relax our minds. ओके, टाइप ऑफ एक्सरसाइज टू रिलैक्स माइंड। यस, ट्रू ट्रू। और कोई बताना चाहेगा? मैम, इट मे बी इट्स अ काइंड ऑफ फ्रीडम, जिसमें हम अपने स्ट्रेस और सारी चीजों से फ्री हो जाएं, मे बी। ओके, इट्स काइंड ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना? ओके, गुड। It's the kind of state in which everyone wants to be so that he or she can be in his or her best condition, जहाँ पर उसको सबसे अच्छा लगता हो। यस यस, बहुत बढ़िया। चलो इसको एक अलग तरीके से समझते हैं। सबसे पहले तो मेडिटेशन ना कंसंट्रेशन नहीं है, इसका रिजल्ट है कि इससे माइंड कंसंट्रेट हो जाता है, ठीक है? दूसरा, देखो, जैसे 3 तरीके से हम अपनी लाइफ में नॉलेज को लेते हैं। मेरी आवाज ठीक आ रही है? ठीक है, तो मुझे बहुत सारी साउंड्स आ रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ आ रही है साउंड्स क्या? I think I will request everyone to please mute yourself, है ना? तो हाँ। someone may be unmuted, that's why. ओके ओके। Yeah. Thank देखो, you. हम अपनी लाइफ में 3 तरीके से नॉलेज को लेते हैं, है ना? सबसे पहला थ्रू सेंसेस, वी टेस्ट इट, है ना? वी हियर समथिंग, वी सी समथिंग, वी टच समथिंग एंड वी गेन नॉलेज। सेकेंड इज थ्रू इंटेलेक्ट, बुद्धि से, है ना? हम अब नॉलेज को लेते हैं। जैसे सनराइज, सनसेट, है ना? ये दिख रहा है, बट नॉलेज क्या कहती है, बुद्धि क्या कहती है कि नीदर सनराइज नॉर सनराइज, है कि नहीं? आप एक पानी जो ग्लास में है उसके अंदर पेन को डाल दें और पेन बेंड करके दिखता है, बट पेन बेंड नहीं है, इट्स ऑप्टिकल इल्यूजन, राइट? तो नॉलेज थ्रू इंटेलेक्ट। एक जो होती है, ये जो हम पहले जो सेंसेस से नॉलेज लेते हैं, ये उससे ज्यादा सुपीरियर है, अपग्रेड है। और इससे भी ज्यादा सुपीरियर है वो नॉलेज जो हमारे अंदर से उठता है, जिससे हम क्रिएट कर पाते हैं, कुछ डिस्कवर कर पाते हैं, है ना? जो अभी है नहीं, लेकिन हम अपनी बुद्धि से उसको डिस्कवर कर रहे हैं। ये सबसे सुपीरियर नॉलेज है। और मेडिटेशन इज द डोर ओपन टू दैट नॉलेज। मेडिटेशन के द्वारा हम उस नॉलेज को गेन कर सकते हैं जिससे हम खुद क्रिएट कर सके, कुछ डिस्कवर कर सके।
ऐसे ही जॉय के साथ है, उसके भी 3 लेवल्स हैं। पहला, हम अपने सेंसेस से जॉय लेते हैं ना, थ्रू सेंसेस, है ना। जैसे आप सबको कोई भी, मानो आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, अब डॉक्टर राजेश को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, ओके। अब एक गुलाब जामुन देंगे तो राजेश वेरी गुड, है ना, बहुत टेस्टी है। दूसरा गुलाब जामुन देंगे, ठीक है, ओके। तीसरा देंगे, टू मच हो जाएगा। और चौथा दे दिया तो टॉर्चर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हम सेंसेस से जो हमें जॉय मिलता है वो बहुत लिमिटेड है, उसकी कैपेसिटी बहुत लिमिट है। वो कुछ ही देर बाद, एक सीन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे फूल हैं, कितनी देर देखोगे? आधा घंटा, 1 घंटा, उसके बाद वही आपको तंग करेगा। सुनना भी, कितना भी अच्छा म्यूजिक हो, कितना सुन लेंगे, एक टाइम के बाद ये सब ऑर्गन्स के साथ ऐसे ही है, इसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। इसी तरह से सेकंड लेवल ऑफ जॉय, जो जब हम कुछ क्रिएट करते हैं, हाँ जी, ओके, जब हम कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ डिस्कवर करते हैं, यू राइट अ पोयम, आपने कोई डिश बनाई, अपने आप से कोई आपने कुछ क्रिएट किया, है ना, उसमें भी आपको एक अलग तरीके का सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये उस जॉय से ज्यादा अच्छा डीप है। अब थर्ड लेवल ऑफ जॉय, जिसमें ना तो आपने कुछ अचीव किया है, ना कुछ क्रिएट किया है, ना कुछ आपने ऐसा सेंसेस के द्वारा लिया है, बट फिर भी आपके अंदर खूब मस्ती है, जॉय है। ये भी मेडिटेशन के थ्रू हो सकता है, जो थर्ड टाइप ऑफ जॉय है। सेम विद पीस, नॉलेज, पीस, जॉय, ये तीनों का जो एक्सट्रीम है, उसका सोर्स सिर्फ मेडिटेशन है। और मेडिटेशन, देखो मेडिटेशन का क्या है, इसके रूल्स भी हैं। 3 तरीके से मेडिटेशन के, मतलब बैठने के लिए 3 रूल अप्लाई करने पड़ते हैं। पहला, मैं इस समय अब मेडिटेशन करने जा रहा हूं, ठीक है, आई एम गोइंग टू सिट फॉर 15 to 20 minutes फॉर मेडिटेशन। नाउ नंबर रूल 1, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं। ये सोचना, एक थॉट रखना अपने अंदर, आई एम नथिंग, आई वॉन्ट नथिंग, आई डू नथिंग। न मुझे कुछ करना है, न मुझे कुछ चाहिए, न मैं हूं कुछ। अकिंचा अचाह अप्रयत्न, संस्कृत में बोलते हैं। जब हम इस स्टेट ऑफ माइंड से बैठते हैं तो हमारा मेडिटेशन बहुत डीप होता है। आप लोग ये एक्सपीरियंस करना चाहेंगे? से आप लोग कुछ इस तरह से ऐसे गर्दन हिला सकते हैं। वैसे तो बहुत लोगों के कैमरास ऑफ हैं, इसलिए मुझे कुछ, बट फिर भी जो लोगों के फेसेस दिख रहे हैं उनसे ही मैं कह सकती, यस, नहीं कर सकते हैं, ये एक्सपीरियंस करना चाहेंगे मेडिटेशन से, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और है, मेडिटेशन में भी स्टेप्स हैं। जब आप स्टार्टिंग में मेडिटेशन करते हो तो सबसे पहले आपको रिलैक्स होते हो, ठीक है ना, आप मेडिटेशन करोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। सेकंड लेवल है मेडिटेशन का कि जब आप मेडिटेशन कर लेते हो उसके बाद आपको एनर्जी फील होगी, ये सेकंड स्टेप है। थर्ड इज, जब आप मेडिटेट करते हो आपके अंदर एंथुसियाज्म आ जाएगा, जोश आ जाएगा। फोर्थ इज, आप क्रिएटिविटी हो जाएगी आपके अंदर, क्रिएटिव करोगे आप चीज।
और फिफ्थ जो सबसे टॉप लेवल है मेडिटेशन का एक्सपीरियंस करने का, वो है कि इस पूरे ब्रह्मांड को आप अपना ही मानो, आप और ब्रह्मांड एक ही हो जाए, वननेस हो जाए इस संसार के साथ। और जब तक ये एक्सपीरियंस नहीं हो तब तक मेडिटेशन को बंद नहीं करना चाहिए। इसको स्टोरी से भी समझ सकते हैं। जैसे देखो, किसी ने लाइफ में जैसे कभी समुद्र नहीं देखा, ठीक है, तो अब वो पहली बार जब समुद्र के पास जाएगा तो उसको देख के ही उसको मजा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। और वो उसी से सेटिस्फाई होके आ जाए कि कितना सुंदर है, मैंने समुद्र देखा पहली बार, मुझे बहुत अच्छा लगा, उसकी लहरें कैसे आ रही थी जा रही थी। लेकिन दूसरा क्या है, वो अंदर गया पानी में, है क्या? नहीं। और तीसरा, उसने पूरा स्विमिंग किया। और चौथा, पूरा समुद्र के भीतर तक जाकर नीचे पूरा क्रिएचर देख के, राइट? तो हमने भी पूरा उसको फील करके आना है, उसकी एक्सट्रीम तक मेडिटेशन का एक्सपीरियंस करना है। तो आप लोग सब करना चाहेंगे? हाँ कि बिल्कुल, ना? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे जी। करेंगे ना? ठीक Yes. है, तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे, ठीक है? अच्छा, मेडिटेशन करने के लिए ना थोड़ा सा उसकी प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है। क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है? थोड़ा प्राणायाम करना पड़ता है, अपने मन को और बॉडी को बैलेंस करना पड़ता है, एक स्टेट में लाना पड़ता है ना, सेंटर्ड में लाना पड़ता है, और फिर उसमें मेडिटेशन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी बैलेंसिंग की चीज करते हैं तो सबसे पहले आप जैसे कोई आसन करो ना, जैसे ताड़ आसन बोलते हैं, या कौन सा आसन, पर्वत आसन बोलते हैं, या ट्री आसन बोलते हैं, तो उसमें हमेशा आपको इंस्ट्रक्टर बोलता है फोकस्ड, एक पॉइंट पे फोकस करो, तभी आप बैलेंस बना पाओगे, राइट? तो ऐसे ही जब तक हम प्राणायाम नहीं करते, हम मेडिटेशन का एक्सपीरियंस नहीं ले पाते। तो हमको सबसे पहले प्राणायाम करना चाहिए, ठीक है? और प्राणायाम मतलब हम सांसों के द्वारा कुछ एक्सरसाइज करें जिससे हमारा मन एकदम सेंटर्ड में आ जाए, और फिर हम वो मेडिटेशन करें तो हमारा एक्सपीरियंस बेस्ट हो। ठीक है, तो आप लोग सब रेडी हैं? यस? यस। नहीं? चलो, यस। तो अभी हम लोग सब रितु दीदी के साथ मेडिटेशन करते हैं। हेलो एवरीवन। जैसे अनु जी ने कहा कि कुछ प्राणायाम करते हैं, तो सबसे पहले हम सीखेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, ठीक है? तो इसमें हमारा एक पोजीशन ऐसे रहेगा, हल्की मुट्ठी हमारे शोल्डर्स के आगे, और स्पाइन शुड बी इरेक्ट एंड शोल्डर्स शुड बी रिलैक्स्ड। पहले आप एक बार देख लेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे आपको, आप आंखें अपनी बंद रखें, राइट? तो इसमें हम नॉर्मल ब्रेथ में ब्रीथ इन करेंगे, दोनों हाथ ऊपर जाएंगे और हाथ ऐसे खुले रहेंगे ऊपर, और ब्रीथ आउट में फोर्सफुली नोज से हम ब्रीथ आउट करेंगे और अपने वापस हाथों को शोल्डर्स के आगे ले आएंगे और अपनी मुट्ठी को बंद कर देंगे। इज इट क्लियर? एक बार और दोबारा बताती हूँ। ब्रीथ इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? तो हम इसके 3 राउंड करेंगे, 3 राउंड्स ऑफ भस्त्रिका प्राणायाम। इन सिंपल है, इनमें आपको नॉर्मल ब्रीथ इन करना है, सांस भरना है और हाथ नीचे आएंगे। आउट में ब्रीथ आउट करना है, ठीक है? जैसे जैसे मैं बोलूंगी ऐसे ऐसे आप करेंगे। क्लियर? करें? किसी को, सबके कैमरास बंद है, पर आई होप एवरीबडी इज लुकिंग एट मी, राइट? तो लेट्स स्टार्ट। आंखें बंद रखेंगे तीनों तक, और उसके बाद हम एक मेडिटेशन करेंगे।
श्री श्री रविशंकर जी की आवाज में, और उसके बाद हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। यस, शुड वी स्टार्ट? तो जिन्होंने स्पेक्स पहना है अपने स्पेक्स भी उतार के साइड में रख दीजिए, और यू कैन सिट कंफर्टेबली। बस आप ये देखो कि आपका स्पाइन इरेक्ट हो। टेक पोजीशन फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ भस्त्रिका प्राणायाम। पहले हम एक नॉर्मल ब्रेथ लेंगे। ब्रीद इन and breathe out. With normal breath all together, breathe in, out, 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 and relax. Hands on your knees, palms towards the sky. Feel the flow of energy in your body. शरीर में जो ऊर्जा का संचार हुआ है उसके प्रति सजग रहें। Get ready for second round of Bhastrika Pranayam. A loose fist in front of your shoulders, spine erect, shoulders relaxed, eyes closed, a beautiful smile on your face. Take a normal deep breath in and let go. In normal breath, all together, breathe in, out, 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 and relax, relax. Both hands on your laps, palms towards the sky. Feel the flow of energy in your body. Get ready for third and last round of Bhastrika Pranayam. A loose fist in front of your shoulders. Take a normal deep breath in and breathe out. Breathe in with normal breath. Breathe in, out, 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 in, out,
and relax. Both your hands on your laps, palms towards the sky. और आराम से बैठ जाएं. Sit comfortably. Now we'll do a short meditation. हमारा अस्तित्व 5 कोशों से बना है. सबसे पहले अन्न रसमय कोश माने हमारा शरीर और वातावरण. दूसरा कोश है प्राणमय कोश, जो प्राण ऊर्जा संचार कर रही हमारा शरीर में, कण कण में व्याप्त है, वो प्राणमय कोश है. फिर मनोमय कोश जो विचारों से बना है. फिर चौथा कोश है विज्ञानमय कोश जो भावनाओं से बनी, विचार से भी सूक्ष्म जो भावनाएं हैं उनसे बनी है. फिर 5वीं कोश है आनंदमय कोश जो भाव से भी अतीत और सर्वव्यापी हमारी चेतना का स्वभाव है. तो आनंदमय कोश जो सब जगह व्याप्त है, उससे युक्त विज्ञानमय कोश. फिर मनोमय कोश जो विचारों से युक्त है. फिर प्राणमय कोश जो प्राण ऊर्जा से युक्त है. और अन्नमय कोश जो अन्न से बना हुआ हमारा शरीर और चारों ओर की वातावरण है. हम अब एक एक कोश को स्मरण करते हुए ध्यान में उतरते हैं. आराम से बैठ जाएं. रीढ़ की हड्डी सीधा हो, शरीर को ढीला छोड़ दें. आंखें बंद कर लें. एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ें. फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ें. अब चारों ओर जो भी आवाज हो रही हो उसको सुनिए. इन सभी आवाजों को हम स्वीकार करते हैं और विश्राम करते हैं. अब हम अपना ध्यान शरीर पर लेके आते हैं. आपका अपना शरीर ईश्वर से मिला हुआ एक अद्भुत देन है. अपने ही शरीर को मन ही मन सम्मान करें.
शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ें और शरीर को सम्मान करें। एक और गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ें। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ें। हमारे शरीर के कण कण में प्राण शक्ति व्याप्त है। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ें और शरीर को और ढीला छोड़ दें। शरीर बाती है तो मन ज्योति है। हमारे शरीर के भीतर बाहर मनोमय कोश है। जो भी विचार मन में आ रहे हों आने दें। अच्छे विचार, बुरे विचार, सबको स्वीकार करते जाएं। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ें। जो भी भावनाएं उठ रही हो मन में उठने दें। सुख कर भावना हो या असुख कर भावना हो, उसको स्वीकार करें।
फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। जैसे जैसे शरीर को ढीला छोड़ते हैं मन फैलने लगता है। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। सभी भावनाओं को स्वीकार करें। किसी भी विचार हो या भावना हो उसे न टोके न रोके, आने दे। शरीर को और ढीला छोड़े। सभी तरह की चेष्टाओं को छोड़कर केवल विश्राम, केवल विश्राम। आप शांत हो और आप आनंदित हो। विश्राम करें।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। आप अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ें। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाएं। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। और परिसर के प्रति सजग हो जाएं। एक और गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते आप आंखें खोल सकते हो। कैसा रहा? How was your experience? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस और फीलिंग रिलैक्स। और ये हो रहा था कि आंखें अभी और देर तक बंद रखें और उसी ध्यान में रहें। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और इसको कंटिन्यू करेंगे तो मुझे लगता है कि इसका जो बेनिफिट है हमें मिलेगा। जी एक्चुअली जो हमने अभी किया ना, ये हमें रेगुलरली करना चाहिए। जी ये तो एक छोटा सा ट्रेलर था। एक मूवी का ट्रेलर होता है ना, छोटा सा होता है ट्रेलर। मेन जो मूवी है दैट इज आवर हैप्पीनेस वर्कशॉप, दैट इज फॉर 4 days 2 hours एवरी डे। तो उसमें मेन हम ब्रीदिंग टेक्निक है, इंटेंस सुदर्शन क्रिया, जो हमारे माइंड को रिलैक्स रखती है 24/7। तो we would like to invite you for our next
happiness workshop also. Yes. आप लोग जरूर कनेक्टेड रहे। हाँ, डॉक्टर विपिन जी के साथ हम बात करेंगे। आप है ना जी। और कोई कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहता है? अगर हमारे पास टाइम है तो हम कुछ और बात करें। विपिन जी आप बताइए। नहीं, मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा और अभी कंटिन्यू कर सकते हैं और लोगों की शेयरिंग ले सकते हैं। जी जी। या मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा था ये जो आपने बताया। तो एक्चुअली हम लोग पहले भी, मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का। तो मैंने देखा कि कैसे, मतलब इट वाज रियली गुड। तो 10 डेज का भी कोर्स मैंने किया था, जो आई थिंक AICTE ने प्लान किया था AOL के साथ कोलैबोरेट होके। हाँ, नहीं ये तो अभी ऑनलाइन मैंने लेटेस्ट किया था अभी लास्ट ईयर, तो सेकंड वेव था। और उससे पहले हमने ऋषिकेश में भी किया था। तो इट वाज रियली ऑसम विद आर्ट ऑफ लिविंग। बट ये है कि तो जो चैलेंज होता है वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हम लोग। वैसे तो अच्छा फील होता है, बट उधर मेन चैलेंज इज टू कंटिन्यू इट। तो वो थोड़ा सा है कि नहीं कभी कभार टाइम निकाल पाते। बट यस, वी विल चैलेंज कि हम कंटिन्यू करें। बिल्कुल। या एक्चुअली जब आपको फायदा होता है ना, तो फिर आप कंटिन्यू करते ही करते हैं। एक बार आपको पता चल जाए ना कि ये हमें इतना फायदा इससे हो रहा है, तो आप छोड़ेंगे ही नहीं। राइट। है ना, हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, हम उसको प्रायोरिटी नहीं देते एक्चुअली। बट बिजी रहने के बाद जब हमें स्ट्रेस फील होने लगता है ना लाइफ में, तब हमें रियलाइज होता है कि अरे हमें ये करना चाहिए। तो एवरी डे अगर आप लाइक 30 मिनट्स अपने लिए निकालें तो इट्स गुड इनफ कि आप, क्योंकि आपका इतना स्ट्रेसफुल जॉब है, सब कुछ है, घर का भी है, सब कुछ देखना है, तो ये बहुत जरूरी है आज की डेट में, है ना। और मेडिटेशन से लाइक वी बाय टाइम। जब हम ये मेडिटेशन 20 मिनट्स का मेडिटेशन करते हैं तो हमारे 4-5 घंटे का हमें फ्रेशनेस मिलता है। जितना हमें डीप स्लीप से मिलती है फ्रेशनेस, ऐसे हमें 20 मिनट के ध्यान से मिल जाती है ना। और जब मैडम, एक्सक्यूज मी मैडम, मैं भी थोड़ा सा इसके बारे में शेयर करना चाहूंगा। हाँ जी। माय नेम इज डॉक्टर प्रताप कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस। मैम, ये हमने इसको किया है, मैं लाइफ टाइम मेंबरशिप भी है मेरे पास, इसमें आर्ट ऑफ लिविंग है। AKTU की तरफ से मैं ऋषिकेश भी गया था। इसमें काफी, मतलब 3 दिन का प्रोग्राम था। वहां पे जो गाइड थे हमारे, उन्होंने काफी कुछ वो किया। और यहाँ पे एक राजेंद्र सर है, मैं इंदिरापुरम में रहता हूँ, गाजियाबाद में। तो राजेंद्र सर है, उन्होंने भी जो है काफी, मतलब बीच बीच में हम लोग का जैसे सुदर्शन क्रिया हुई या लॉन्ग सुदर्शन क्रिया भी होती है इसमें। तो वो काफी मतलब हद तक हमें काफी बेनिफिट मिला मैम। तो ये अच्छी चीज है मैम, इसको करना चाहिए। इससे ब्रीदिंग पावर भी इंक्रीज होता है और मेमोरी भी अच्छी होती है मैम। बिल्कुल, आपका फोकस बढ़ता है लाइफ में। और आप सब जैसे प्रोफेसर्स हैं, तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनको आप अच्छे से हैंडल कर सकते हो। अगर आप रिलैक्स्ड हो, आपका माइंड काम है, तो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं एग्रेसिव हो जाते हैं या कभी ऐसा माहौल हो जाता है, तो आप यू कैन हैंडल देम नाइसली। और अपने स्टूडेंट्स को भी आप इसमें अगर देखो तो आप एक क्लास में जो भी है, कुछ एक ऐसा बना लो कि हमको 10 मिनट्स के लिए मेडिटेशन करना ही करना है ना। और सबसे बड़ी बात है कि जो रोज करता है ना, उसी को इसके बेनिफिट्स पता चलते हैं। मैम, डेली तो नहीं हो पाता है फ्रैंकली स्पीकिंग, बट ये है कि हाँ, बीच बीच में कभी कभी जब छुट्टी होती है, तो इस टाइप से जब टाइम रहता है तो बीच बीच में थोड़ा सा कर लेते हैं। सारे वगैरह हम लोग का मतलब पता है, तो ये चीजें इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगी राजेंद्र जी।
आपने बोला ना रेगुलर नहीं हो पाता ये। जी देखो, जब हम छोटे थे हम लोगों को ब्रश करना कितना मुश्किल लगता था ना, हमारे पेरेंट्स हमको जबरदस्ती ब्रश कराते थे, जी मैम। है कि नहीं, है जी ना। नहाने में भी हम इरिटेट होते थे, हमको लगता था नहीं जरूरत नहाने की, जी बट हमें स्कूल में हमारे टीचर ने, हमारे पेरेंट्स ने, समाज ने हमको ये समझाया कि डेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, हाइजीन होना बहुत जरूरी है, साफ सफाई रखना चाहिए, शरीर को साफ रखना चाहिए, है ना। उसकी इम्पोर्टेंस बताई, है ना। और हम कन्विंस हो गए और हमने कहा यस, अब हम जब ये कन्विंस्ड हैं कि हमारे शरीर को साफ रखना चाहिए, इसलिए हमको रोज नहाना है, हमें अपने दांत साफ रखने चाहिए क्योंकि नहीं तो हमारे दांत खराब हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो इसको बोल सकते हैं दुर्भाग्य है कि हमारी कभी भी एजुकेशन में हमें ये नहीं बताया गया कि माइंड का भी नहाना होता है, मेंटल हाइजीन। भाई आपके पास सब कुछ है लेकिन आपका मन ही ठीक नहीं है तो आप राइट। कुछ भी कर पाओगे क्या? नहीं ना। नहीं। बट इसके लिए अभी हम कन्विंस नहीं है कि यस, माइंड को संभालना बहुत जरूरी है। हमें लगता है लेकिन हम पूरी तरह से कन्विंस नहीं है, क्योंकि जिस दिन हम कन्विंस हो गए ना कि यस मेंटल हाइजीन बहुत जरूरी है डेंटल हाइजीन के साथ साथ, उस दिन हम रोज मेडिटेशन अपने आप करेंगे। उन 24 आवर्स में अपने आप वो टाइम निकाल लेंगे जिसमें हम मेडिटेशन करें। क्योंकि जैसे अभी रितु दीदी ने बोला कि मेडिटेशन करके आप टाइम सेव करते हो। क्यों? क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो आपका मन शांत हो जाता है, तो आप जो भी काम कर रहे हो उसमें बहुत ज्यादा फोकस्ड होके अपना 100% देके जल्दी से बाहर आ सकते हो। नहीं तो छोटी छोटी चीजों में स्ट्रेस लेके हम अपना पूरा पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं। कितनी बार होता है आप देखो, जो लोग हमने मतलब ये रिसर्च में है कि जब मेडिटेशन नहीं करते तो आप जैसे सुबह बहुत अच्छे एक्टिव हो, ठीक है ना अपना, लेकिन शाम तक धीरे धीरे वो एनर्जी लो हो जाती है कि नहीं होती? वो शाम छोड़ो, कई बार तो दोपहर से ही एनर्जी लो हो जाती। किसी ने बस कुछ बात कही नहीं कि हमारा पूरा एनर्जी ड्रेन हो गया और सारा दिन मन कंटिन्यूअसली उसी में चल रहा है। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे इमीडिएट उस चीज से बाहर आना आ जाता है, थोड़ी देर बाद आ जाओ। तो कितना जरूरी है ना। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जिस दिन आप इस चीज को हम समझ जाएंगे ना, उस दिन हम मेडिटेशन को छोड़ नहीं सकते। नहाना एक दिन छोड़ देंगे चल जाएगा, लेकिन मेडिटेशन को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मन ठीक होगा तो सब ठीक लगेगा। थोड़ा कम भी होगा तो भी अच्छा लगेगा, कम से कम एंजॉय तो करेंगे जीवन को, मस्ती से तो जिएंगे, खुश होके तो जिएंगे। आप सोचो, आप एक ऐसी लाइफ जिसमें आपने बहुत पावर ले ली, एक पोजीशन भी बहुत अच्छी है ले ली है, कर ली, पा ली आपने उस पोजीशन में, बहुत पैसा भी आ गया, बहुत फेमस भी हो गए, लेकिन मन खुश नहीं है, तो वो कैसा रहेगा? नहीं अच्छा रहेगा ना। लेकिन मन खुश है, थोड़ा कम है, तो वो ज्यादा अच्छा है। चॉइस इज योर्स, किस तरह की लाइफ को चाहते हो। अनु मैम, डॉक्टर राजेश त्रिपाठी दिस साइड। हाँ जी मैम, एक मैंने भी कोर्स किया था तो उसमें 40 डेज तक तो मैं कर पाया, बट वो एक ऐप शेयर किया था सर ने वहाँ पर। वो ऐप का अब तो मेरे पास नहीं है, तो अगर आप सारे ये ऑडियंस के साथ अभ्यासा लिंक होगा, अभ्यासा भेजा होगा। जी मैम, तो वो अगर बता देंगे तो सारे लोग ज्वाइन कर पाएंगे, क्योंकि दैट वाज रियली सो गुड एंड सो क्विक, क्योंकि मोबाइल आजकल सबके पास है। राजेश जी, आप अभ्यासा लिंक तो हम आपको आप अपने फोन से डाउनलोड कर सकते जी हैं। मैम, जी मैम, जी मैम। भले ये इस लॉकडाउन के दौरान से हम 2 साल से रेगुलर एवरीडे 6:30 to 8 हम सुदर्शन क्रिया का प्रैक्टिस एक साथ करते हैं ऑनलाइन फ्री। वो मुझे पता है मैम। बेसिकली क्या है कि जैसे आपका एक टाइम है, हम लोग जैसे सबके पास रहेगा तो हम जब भी कंफर्टेबल फील करेंगे so हाँ that we तो can do। ठीक है, वो तो फिर आप अभ्यासा ऐप डाउनलोड कर लीजिए जी मैम, जी और मैम। उसमें आपको प्राणायाम हाँ और जी, वो आ हाँ जी, जाएगा। हाँ जी, ठीक हाँ है जी। ना। बस वही मुझे मैं आई फॉरवर्ड एक्चुअली, हाँ जिससे कि अभी सबको पता चल जाए, so that everyone can do that। थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। लेकिन निधि गोयल जी ने आपको ये
हाँ जी, हाँ बोले पहले। एक बहुत मंजू जी सिंपल आप सा बोले। सवाल था बट इम्पोर्टेंट भी है, हमें लगता है ऐसे। हाँ जी। समटाइम बहुत सीवियर हेडेक अगर किसी को हो रहा है, रेयरली कभी होता है, और हमें इंस्टेंट रिलीफ चाहिए व्हाइल वर्किंग इन जॉब, मतलब हम काम में बिजी है बट हम इंस्टेंट रिलीफ चाहते हैं क्योंकि सीवियर हेडेक हो रहा है, तो ऐसा क्या किया जाए कि कुछ सेकंड में हम उससे रिकवर हो जाएं? ऐसे मंजू जी, देखिए कोई मेडिटेशन ऐसे नहीं हो सकता कि आपको इमीडिएट इसका रिजल्ट आ सके। क्यों? क्योंकि जो आपका सिर दर्द है उसका रूट क्या है? आपका खान पीन है, आपका डाइजेशन है, आपका कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से है। तो मेडिटेशन डायरेक्ट आपको उस चीज से हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन धीरे धीरे आपको इम्प्रूव ला सकता है, आप के अंदर वो इम्प्रूवमेंट ला सकता है। बट मैं सजेस्ट करूंगी आप आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाएं। नो एक्चुअली आई एम नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम। ऐसा कभी होता है ना कि कुछ नियर एंड डियर में कुछ इंसिडेंट ऐसा हो गया और हम पहुंचे, फिर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे मीन्स आपके इमोशंस अनबैलेंस हो रहे हैं, राइट? तो उसके लिए जो सुदर्शन क्रिया जैसे है, ये हमारा इमोशनल बैलेंस करते हैं, ठीक है ना? उसकी रेगुलर प्रैक्टिस से ही होगा। हाँ जी, रेगुलर प्रैक्टिस आप करेंगे तभी होगा। ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है कैप्सूल कि आपने खा लिया और इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, है ना? ओके ओके मैम, थैंक यू। एलोपैथिक इसीलिए तो हिट हो गया क्योंकि वो बड़ी जल्दी इमीडिएट आपको रिजल्ट देता है। आपने डिस्प्रिन खाई, विद इन 5 मिनट्स आपका ठीक हो गया, बट उसका साइड इफेक्ट्स आप सबको पता है कि नहीं? तो लॉन्ग टर्म अगर देखेंगे तो शॉर्ट टर्म पेन होगा लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में अगर आप गेन चाहते हो फिर लॉन्ग टर्म में पेन होगा। तो ये तो बेसिकली आपका सर दर्द हुआ तो वो स्ट्रेस की वजह से हुआ ना, और वो एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उसको स्ट्रेस को खत्म करना पड़ेगा, एंड दैट उसका ब्रेथ के थ्रू है सुदर्शन क्रिया, रेगुलर एंड मेडिटेशन। थैंक यू। सेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है और लोगों को बहुत ही फायदा होगा इस होप के साथ, और ये हम लोग चाहेंगे कि आगे भी 1-2 सेशन और भी हम करें कि लोगों को बेनिफिट हो और लोग जुड़े भी। कुछ नंबर जो आपने शेयर किया है वो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा कि लोग आपसे बात कर सकें, फर्दर मिल सके। कोई ऐसा हैप्पीनेस का कोर्स चलता है तो उसको लोग ज्वाइन भी कर सकें। बहुत बार लोग चाहते हैं ज्वाइन करना, उनको जानकारी नहीं होती है, तो वो सारी चीजें इनको सभी फैकल्टी को प्रोवाइड करेंगे। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू मैम सर, एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी सर। एक्चुअली जो प्रैक्टिकल सेशन रहा बहुत ही एनर्जेटिक रहा, बहुत परफेक्ट रहा गुरुजी ने जो कराया, लेकिन जो थ्योरेटिकल सेशन था उसमें जो मैम ने ध्यान के बारे में बताया और साथ में जो गुरुजी ने बताया कोषों के बारे में, तो मेरा कुछ पहले का भी थोड़ा बहुत इस बारे में जो ज्ञान है, और जो मैं आपके डेफिनेशन और गुरुजी के डिफरेंट कोर्सों के डेफिनेशन को अगर मैं मिलाता हूँ तो जो ध्यान की डेफिनेशन बनती है वो मुझे लगता है जो आप लोगों ने शेयर किया है उसमें थोड़ा सा मतलब मुझे एक क्लेरिफिकेशन चाहिए। मतलब मैं क्लियर करना चाहता हूँ अपने आप को आप लोगों के माध्यम से। जैसे अनु मैम ने बताया कि जो एक्सट्रीम ऑफ नॉलेज, जॉय एंड पीस है वो ध्यान की पराकाष्ठा है। मतलब ध्यान का जो एक्सट्रीम है वो एक्सट्रीम ऑफ नॉलेज, जॉय एंड पीस है, ठीक है। लेकिन जैसा कि गुरुजी ने डिफरेंट कोर्सेस के बारे में बताया, कोर्सों के बारे में बताया, और जो आनंदमय कोर्स होता है उसमें मन, शरीर, मन, बुद्धि, हृदय और आत्मा, इन सब से हम परे हो जाते हैं। तो जब हमारी बुद्धि रहेगी नहीं वहां पे तो हम जॉय, नॉलेज, पीस इन सब का अनुभव कैसे कर पाएंगे? तो मेरा ये कहना है कि इन सब से परे आई थिंक
ध्यान की पराकाष्ठा होती है। आपका नाम विपिन जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर श्याम प्रताप सिंह। श्याम प्रताप जी। श्याम मैम। प्रताप जी, आप थोड़ा सा समझने में रह गए। जो मैंने नॉलेज के लिए बताया 3rd लेवल, उसमें ये था कि वो नॉलेज जो हम गेन करते हैं वो आफ्टर मेडिटेशन है, वो सोर्स मेडिटेशन है। मेडिटेशन उसका डोर है कि मेडिटेशन जब हम डीप करते हैं तो उस मेडिटेशन की प्रैक्टिस से हमारे अंदर वो नॉलेज को लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, पहला। दूसरा, फिर जॉय। जॉय मतलब हम चीजों में जॉय को नहीं ढूंढ रहे, हम कुछ हमने अचीव कर लिया उसको भी जॉय नहीं ढूंढ रहे, उसमें भी कि हमें कोई हमारी कोई तारीफ करे या हमने कुछ अचीव कर लिया तो भी हम नहीं, हमारे पास कुछ है या नहीं है बट फिर भी हमारे अंदर वो जॉय है, हमारे अंदर वो खुशी है, ये भी मेडिटेशन का रिजल्ट है। ये सब रिजल्ट है मेडिटेशन के। आप समझ पाए? मेडिटेशन का एक्सट्रीम जो है वो है कि आप मेडिटेशन के द्वारा जो सबसे ज्यादा मतलब जिसको बोल सकते हैं लेने की अपने डिजायर्स को फुलफिल करने की जो है कैपेसिटी, उसको बढ़ा सकते हैं। और आपके पास जो भी है उसके अंदर भरपूर आपको आनंद आए, ये मेडिटेशन का रिजल्ट है। और बाकी मैं बताऊं, हम एक चीज के बारे में कई जैसे बोल सकते हैं ना, एक स्पॉन्जी रसगुल्ला है, अब उसको मैं कितना भी डिस्क्राइब कर दूं, लेकिन उसको एक्सपीरियंस आप कब कर पाएंगे? जब आप खाएंगे, हाँ के ना, है ना? तो शायद मैं एक्सपीरियंस अपना बता रही हूँ, लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस तभी कर पाएंगे जब आप उसको रेगुलर करेंगे, रेगुलर, 1 डे नहीं। जैसे आज किया ना, कि कुछ घंटे के लिए आपको अनुभव देगा, जब आप रेगुलर करेंगे ना तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर कैसे स्टेप बाय स्टेप आपका मतलब हाईएस्ट पोटेंशियल आपका बाहर निकल रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हेलो। हाँ जी। आई एग्री कि ये डिफरेंट रिजल्ट्स हैं ध्यान के, लेकिन जो ध्यान की पराकाष्ठा है उसके बारे में बात मैं कर रहा हूँ कि ध्यान की पराकाष्ठा में तो कुछ बचता नहीं ना, मतलब विवेक तो बचता नहीं ना, तो वो एक्सपीरियंस कौन करेगा? सुनो, यही तो मैं कह रही हूँ, ध्यान की पराकाष्ठा कबीर जी आपको कहते एक मिनट हैं, सुनो 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 सुनो, ध्यान की पराकाष्ठा में भी हमने बोला ना कि देखो सबसे पहले जब आप ध्यान करते हो तो आपको रिलैक्स होते हो, है ना? फिर धीरे धीरे ध्यान का लेवल 2 बढ़ जाता है कि आप ध्यान करते हो, रिलैक्स के साथ साथ आपके अंदर एक एनर्जी भी आती है। फिर तीसरा है आपका एक लेवल और बढ़ जाता है, आप ध्यान करते हो, आपको रिलैक्स तो होता ही है, आपके अंदर एनर्जी भी होती है, आपके अंदर एक क्रिएटिविटी भी स्टार्ट हो जाती है, आपके अंदर अपने आप से कुछ नया करने का अंदर से आपके अंदर वो स्किल्स आ जाती हैं। फिर चौथा है कि आपका एक स्टेप और ऊपर बढ़ गए कि आप ये सब भी कर रहे हो लेकिन आपके अंदर फुल एंथुसियाज्म भी है, जीवन को जीने का एक अलग तरीके का उत्साह है जो कभी नहीं जा रहा, एज वाइज कहीं नहीं जाऊंगा। ये सारे जो है ये डिफरेंट आयाम है ध्यान के, लेकिन मैं एक्सट्रीम की पराकाष्ठा की बात कर रहा हूँ जो आपने बताया। अभी सुनो तो सही, 5 स्टेप, 5th स्टेप क्या था? इस पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाने वाली फीलिंग, अपने को इस ब्रह्मांड के साथ एक अनुभव करने वाली फीलिंग, ये हाईएस्ट है, जिसमें मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं और ये ब्रह्मांड एक है, वननेस विद मैम, वर्ड। जब आपने कहा कि आप बचे ही नहीं, तो ये फील कौन करेगा कि मैं ब्रह्मांड के साथ एक? जब आप हो ही हर जगह, जैसे कबीर जी, तो बात ही खत्म हो गई। कहते हैं, जैसे अदरवाइज मत लीजिएगा, जैसे कबीर जी भी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं। मैं का मतलब उनसे शरीर, मन, बुद्धि, विवेक, आत्मा, हृदय, इन्हीं सबसे है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना ही। तो जब मैं बचा ही नहीं, मेरा बुद्धि विवेक कुछ भी नहीं बचा, तो अनुभव कौन करेगा कि क्या हुआ है? जब मैं नहीं तब हरि। प्रताप जी, यहाँ पे हम ना अपना इंटेलेक्ट यूज कर रहे हैं,
जब हमें वो एक्सपीरियंस होगा ना जो पराकाष्ठा वाला, जी तब मैम। हम किसी को बता भी नहीं पाएंगे। वो बस वननेस का, जो exactly अनु मैम, जी कह रही है, exactly मैम। वननेस का, वो है exactly, प्रेम। दैट इज योर नेचर, योर जॉय, पीस एंड लव। ओके। उसी के साथ तो उस वही पराकाष्ठा है ना, जो आपका जो असली स्वरूप है वो क्या आनंदमय है ना, वही आनंद कोश में वही आनंद है ना, उसी को तो मतलब एक्सपीरियंस करना है। मैं वहां पे कौन अनुभव करे, किसको अनुभव करो, ये सब खत्म हो जाता है ना। हाँ, यहाँ पे आप थोड़ा सा अपना इंटेलेक्ट यूज कर रहे हो, जैसे रसगुल्ले का बता रहे हैं ना, रसगुल्ला खाने के बाद ही पता चलेगा। जी एग्जैक्टली मैम, उसको अगर रसगुल्ले का स्वाद के साथ हमने अपनी बुद्धि लगा दी ना, तो वो जमेगी नहीं बात। समझ रहे हो आप? जैसे हाँ, क्योंकि हम बोलेंगे गोल है तो आप बोलोगे गोल तो बॉल भी है, फिर हम बोलेंगे गोल है लेकिन व्हाइट है तो आप बोलोगे वो तो कॉटन होती है, फिर हम बोलेंगे गोल है मीठा है तो आप कहोगे वो तो चॉकलेट होती है कि नहीं? तो ये तो खुद अनुभव करने वाली बात है। मैम मेरा यही कहना है कि पराकाष्ठा में कुछ बचता नहीं है, ना अनुभव करने वाला और ना जिसको बड़ा अनुभव मजा किया जाए। आएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, और बड़ा मजा आएगा। आप सुदर्शन क्रिया का एक्सपीरियंस करो, शायद उसमें आपको वो जवाब मिल जाए। डॉक्टर प्रताप, हेलो बेसिकली इसका मोटिव ही यही है कि यू हैव टू फील ईच एंड एवरीथिंग बाय एक्सपीरियंसिंग योरसेल्फ। यस, ट्रू, वेरी गुड प्रताप जी। ठीक है प्रताप सर, समझ गए? अब आपको ये सारी चीजें करनी है एंड यू हैव टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस। कहाँ तक जा पाते हैं पराकाष्ठा तक, ये आपको खुद बताना है, पूछना नहीं है। वो कह रहे हैं पराकाष्ठा तक बुद्धि नहीं रहेगी मैम, नहीं, मैं नहीं हम सर, भी यही मेरा कह ये रहे हैं, कहना बुद्धि था है कि ही नहीं। जो डेफिनेशन बताई गई थी वो डेफिनेशन एक्चुअली बनाई नहीं जा सकती, मेरा ये कहना था। यस डियर, क्योंकि बेसिकली ना ये आइडियल कंडीशंस हैं, वहां पहुंचने के बाद ना कोई अनुभव करने वाला बचता, और किसको अनुभव किया जाए वो भी नहीं बचता। बेसिकली वो लास्ट स्टेप है, वो लास्ट स्टेप है प्रताप सर, वो लास्ट स्टेप है। उसके इनफाइनाइट बीच को में हम बहुत सारी फाइनाइट। चीजें हैं। फर्स्ट हेलो एंजॉय द रोड बेसिकली। यस, हेलो एंजॉय द जर्नी। एंजॉय द जर्नी बेसिकली ना, दैट इज जो ओके सर, पराकाष्ठा दैट तक। इज हाँ, ओके। वहां पर बुद्धि को जाकर साइड पता में रख के चलेगा। एंजॉय द जर्नी। वही है, नहीं हम दैट इज डेफिनेशन का ओके, दैट मतलब, इज ओके। हाँ डेफिनेशन का मतलब बेसिकली यही है कि आपको उस प्रताप लेवल जी, तक जाने के लिए ये सब चीजें प्रताप करनी जी, करनी यू आर चाहिए। वेरी लकी कि आपके अंदर से इस तरह के क्वेश्चंस पुट अप अंदर से हो रहे हैं। गुरुजी बोलते हैं इट्स अ वेरी गुड साइन जब आप ये सोचते हो कि ये क्या है, मैं कौन हूँ। लेकिन गुरुजी साथ ये भी बोलते हैं ये तुम्हें कोई बताएगा नहीं, ये तुमको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। मैं बस मेरा 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 जो मतलब इशू था वो यही था कि हम उस अनंत को, इनडेफिनिट को डिफिनिट जब करते हैं तो हम गड़बड़ी कर देते हैं, जब हम परिभाषित करने लग जाते हैं तो गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के लिए आपको कहीं ना एक दिशा तो बनानी पड़ेगी ना, समझ रहे हो ना? उस अनंत तक पहुंचने के लिए जैसे मूर्ति का सहारा लिया जाता है कि भगवान की फीलिंग को स्टार्ट करने के लिए, कि तुम्हारे अंदर वो ग्रेटिट्यूड वाला भाव पैदा हो। उस मूर्ति में नहीं है कुछ, तुम्हारी भावना से वो मूर्ति में पावर आ रही है। बट पहले तुमने मूर्ति को रखा ना सामने, तो पहले कुछ धारणा बनानी पड़ती है, फिर धीरे धीरे उस धारणा से एक्सट्रीम बाहर जाना पड़ता है। फिर क्या होता है, फिर तो मूर्ति को देखते ही मूर्ति को नहीं देखते, आंखें बंद करके अपने अंदर ही चले जाते। मैम आई थिंक जो समझ मैं लो मेरी पूछ बात रहा था, जो मैं पूछना चाह रहा था, जो मेरा इशू था, आई थिंक कन्वे हो गया है, और मैं भी मतलब जो कन्वे करना चाहता था आई थिंक कन्वे। ठीक ठीक, बहुत अच्छा लगा। जय गुरु। थैंक यू। मंजू मैम नाउ जी। Yeah. Manju ma'am, you are not audible. Can you please? मैम, मंजू मैम आप वायर हटा करके करिए। नहीं, नो मैम। हाँ यस यस, ये वो थोड़ा Manju ma'am, you are still not audible.
चलिए, अनुराधा मैम, एक मैं I'm just checking कि अगर मंजू मैम का आवाज आ जाती तो अदरवाइज आई विल प्रोसीड, है ना? मंजू मैम, मंजू मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट है, आप म्यूट है, उसको अनम्यूट कीजिए। Okay, so I think there's some network problem on the side of Dr. Manju ma'am. So on the behalf of Dr. Manju ma'am, I'm giving the vote of thanks to Miss Anu Verma, Miss Ritu Sethi, and all the team members who have really supported on making this meditation really enlightening for all of us. So it was very relaxing from 1 to 2 p.m. Now we have again rejuvenated to do the second half of our work, Hannah. And thank you so much for enlightening us. And I really, when we are all looking forward to continue this session, and we will really strive, and challenge to really continue, this daily meditation technique. So I, on the behalf of Green Environment Club, Department of Applied Sciences, Galgote College of Engineering and Technology, I again offer my deepest gratitude and vote of thanks to all of you. Thank you so much, and all the students, all the staff members, all the faculties, and our head of department, Professor Rajesh Kumar Tripathi, our director sir, chairman sir, and CEO sir. So I offer my deepest gratitude and vote of thanks to everyone to make this event really successful. So thank you so much. Yeah. Thank you for inviting Thank you us. so much. Thank you Thank so you for much. inviting us. एंड सभी जितने भी ऑडियंस हैं वो फीडबैक फॉर्म फिल कर दें और सर्टिफिकेट भी आपको ऑटो जनरेटेड मेल पर रिसीव हो जाएगा। सर वो फॉर्म ऑन नहीं हो रहा, आई मीन ओपन नहीं हो रहा। नहीं मैम, फिर से करिए, ओपन होगा, लोगों ने फिल जी। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। ओके, लेट्स क्लोज दिस सेशन। 2 आवर्स तक ये ऑन रहेगा, वो आप कर लें। ओके जी, थैंक यू सो मच। Okay, thank you. We will officially closing this session. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you. अभी आप रखते हैं कोई बात नहीं, इसीलिए अगर 2 लोगों में रखता हूँ। हाँ, जरूरी है।